Yesterday we discussed about the block diagram of electric drives. Uh, we had the major components as source, power modulator, motor, and then load, and you had control and sensing unit in the control and the sensing circuitry. Okay, so one of the most important thing is the mechanical aspect of um, these electric drives, because first we have to study the dynamics of these drives, and then we can actually match the requirements of those dynamics that are being exhibited by that particular type of load. So because the load is mechanical in nature, so you will have to read the dynamics of it first, and then in that case, then after that you will have to choose a motor and all the suitable circuitry that can actually drive the motor, or in fact drive the load under those conditions that are defined by the dynamics of that particular mechanical load. Okay, so for that purpose, what we have is that basically what we consider at this level. Remember that the levels of subject goes on increasing as and also the detailing goes on increasing. So at this graduate level, undergraduate level, you people are expected to know the very basics of all the types of drives and the basic principles of operation, and all the continuity equations. All these things are to be taken care of at this level, because the subject is quite vast. So we won't be going into very much detailing of mechanical aspects of these drives, but still the very basic things are to be taken care of at this point of time. So that is why we have considered a motor load system for its dynamic mechanical analysis. Uh, so in that case, what we take is that, as you see in this diagram, that you have a motor and you have a shaft of that motor, and that shaft is connected to the load. Obviously, the load is, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, कि that it can be defined in two terms, in terms of either rotational one or the translational one, or linear. So in both these cases, first it has to be a rotation, and then it is transformed into another means, either maybe at times linear. But here we consider a motor load system, because the output of the motor is rotational. So the load is also considered to be a rotational one. ठीक है, फिर उसके बाद चाहे आपके पास जैसे इंजन होता है या किसी भी उसमें, तो उसके बाद उसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं थ्रू गियर्स, एंड वो व्हील्स जो है हम उसे लीनियर मोशन में, बट आपके पास होता रोटेशनल मोशन ही है, जहाँ पे भी कोई भी आपको ड्राइव सिस्टम ऑपरेट कराना है, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्पैक्ट वन, वो चीज़ अपनी जगह घूम के वहीं रहती है. अगर कोई लीनियर चीज़ होगी तो वो आगे चली जाएगी, सो इट वोंट बी दैट सिंपल to operate. Still, there are some special cases of linear induction motors. We'll be taking in due course of this subject, and we'll be discussing it. कि कैसे होता है, क्या होता है. But still, most of the things are in this rotational form. So we consider a simple motor, and you have these two blocks being shown as motor and load, and they are connected through a shaft. ये जो आपके पास बीच में है, ये इसकी एक shaft है, ये जो आपकी लगी हुई है. ठीक है, and obviously the motor rotates the shaft to make the load rotate. The direction of motor, the torque is say clockwise, if you consider from here. So it generates a torque T. ठीक है, and a rotational speed omega m is produced. Remember that whenever you talk about the load torque, it is always be opposing to the motor torque. यानी उसे मोटर को एक्चुअली ड्रैग करना पड़ेगा लोड को. ठीक है, सो इट इज टेकन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द
मोटर टॉर्क। तो अगर ये हमने क्लॉकवाइज लिया है तो दूसरा वाला जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। वी विल बी हैविंग सर्टेन कंडीशंस इन विच द signs of these or the directions of these will be different. Yani, here what you are seeing is that you have a motor torque in a clockwise direction, you have a rotation in clockwise direction, and you have a load torque in the anti-clockwise direction or in the direction opposite to the direction of motion and the direction of the torque produced by the motor. ठीक है, तो ये हमारा सिंपलेस्ट केस है जिसमें हमारे पास एक पैसिव लोड है. पैसिव लोड डज नॉट हैव एनी एक्टिव एनर्जी इनसाइड इट. So in that case, this is the simplest form of a motor load system in which you have these directions to be defined like this. ठीक है, इसमें एक टर्म और आता है, that is J. This is known as polar moment of inertia or simply moment of inertia, referred to the shaft of the motor, and this is defined in kg per meter square. Obviously this is a mechanical system. तो मोटर की शाफ्ट है, मोटर का इटसेल्फ शाफ्ट का एक वजन है, ठीक है, उसका इनर्शिया होगा, प्लस एक पूरा लोड है उसके साथ जो रन कर रहा है, उसका भी एक इनर्शिया होगा. बिकॉज इलेक्ट्रिक इट इज़ नॉट दैट सिंपल एज दैट वी हैव सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के यू टर्न ऑफ द एक्साइटेशन तो पोलर क्यों? एंड द रेस्पॉन्स गोज आउट. सर ओके, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस? पोलर कहते हैं रोटेशन को. पोलर, तो जब आपके पास जो वो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते थे ना, जो आपको याद होगा 11th में हमने पढ़ा होगा, यस सर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं. पोलर, पोलर कार्टेशियन आर एंगल, हाँ, आर एंगल थीटा के फॉर्म में जो होता था, यस सर. ठीक है ना, तो उसलिए हम इसे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं. ठीक है, तो वी हैव लाइक दिस. सो यू हैव अ मोटर लोड सिस्टम. तो होता क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट में कि वी हैव एन एक्साइटेशन. एक्साइटेशन है आपके पास. तो इफ यू कंसिडर एन इलेक्ट्रिकल सर्किट जो आपने अब तक देखे हैं, तो व्हाट इज दैट, इज दैट यू कंसिडर 50 हर्ट्ज सप्लाई, ठीक है, और डीसी सप्लाई, कुछ भी हो आपके पास. तो इफ यू टर्न ऑफ और टर्न ऑन द सर्किट, द ट्रांजिएंट कंडीशन हैपन्स टू बी देयर फॉर अ फ्यू साइकिल्स. ठीक है, तो फ्यू साइकिल्स का मतलब टाइम कितना हुआ. एक अगर 50 हर्ट्ज सप्लाई है तो यू हैव अ साइकिल ऑफ 0.02 सेकेंड. तो अगर 4-6 साइकिल भी हो गई तो 0.1 सेकेंड हो गया. सो दैट इज से ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल. ठीक है, तो द टाइम कांस्टेंट हेयर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. द टाइम कांस्टेंट of an electrical circuit is very low as compared to the time constant of the mechanical circuit or a mechanical system. ठीक है, आप सर्किट कहें, सिस्टम का, जो कुछ भी कहें, तो उससे जो है, क्यों? बिकॉज एज सून एज देर इज एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, it remains there for a certain period of time and for a much larger period of time as compared to an electrical circuit or a system. यानी इसमें होगा क्या, अगर आपके पास मोटर पे कोई ट्रांजिएंट कंडीशन होती है तो आती और चली जाती है सप्लाई सिस्टम की वजह से, कोई फ्लक्चुएशन आया, कुछ आया, ठीक है. बट when you have a motor connected to a load, obviously that will be a mechanical load. So the dynamics of that load cannot change that fast. So it may not respond to that transient. The second thing is that whenever there is any sort of transient on the mechanical side, it does not goes off very easily because the time constant of that system is very large. That means the settling time और ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एक मैकेनिकल सिस्टम है एंड यू हैव अ सर्टेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्वॉल्व्ड इन इट, जे जो आपके पास है, तो वो इतनी जल्दी स्पीड चेंज, टॉर्क चेंज, इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता. चाहे आपके पास इनपुट सप्लाई में कुछ भी चेंज हो जाए, मगर ये डायनेमिक्स जो है उसकी मोटर लोड सिस्टम की, ये चेंज इतनी जल्दी से नहीं होती. द सेकेंड थिंग इज दैट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू कंसिडर जे ओवर हेयर. वाई? बिकॉज इफ यू हैव अ लाइट सिस्टम, अगर आपके पास कोई हल्का सा सिस्टम है तो उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होगा. अच्छा का मतलब बहुत फास्ट होगा. आप इधर इलेक्ट्रिकल इनपुट चेंज करेंगे, थोड़ी सी देर में ही आपके पास इन अ फ्यू मिली सेकेंड और क्वार्टर ऑफ ए सेकेंड जो है आपके पास इफेक्ट दिख जाएगा. बट इफ इट इज़ अ वेरी लार्ज सिस्टम, in that case you won't be seeing the effect of that response on that particular system that soon. ठीक है, so J is a very important factor when you consider any instability
or say any disturbance into the system or any state change. State change का मतलब ये है कि आपके पास एक पर्टिकुलर स्टेट में वो काम कर रहा था. स्टेट का मतलब ये उस आपने उस कंडीशन को सर्टेन पैरामीटर से डिफाइन कर दिया है और अब एक दूसरी कंडीशन बनी तो उसमें दूसरे पैरामीटर्स डिफाइन होंगे, से स्पीड और टॉर्क के हों, कोई भी चीज़ हो ऐसी, ठीक है आपके पास. तो व्हाट विल हैपन व्हेन देयर इज अ स्टेट चेंज, इससे एक स्टेट में वो काम कर रहा था, से दैट इज अ स्टीडी स्टेट वन, एंड देन यू हैव अ चेंज इन स्टेट थ्रू अ ट्रांजिएंट कंडीशन, ठीक है, and then it reaches to another state or say steady state. So what actually happens, there is a transient in between those two conditions. So that change or that settling or the occurrence of that transient depends upon how much is j of that system. अगर j ज़्यादा होगा तो वो रिस्पॉन्ड भी देर से करेगा उस सिग्नल को या उस इनपुट को, और उस पर सेटल भी देर से होगा, ठीक है. तो टोटल टाइम जो आपके पास टाइम कांस्टेंट है सिस्टम का, दैट विल बी क्वाइट लार्ज इफ जे इज लार्ज. सो जे डायरेक्टली डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ दैट सेटलिंग टाइम, ठीक है. देन आफ्टर दैट यू हैव ओमेगा एम, दैट इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड, एंड यू हैव टॉर्क, द टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर, इंस्टेंटेनियस टॉर्क. इंस्टेंटेनियस हम उस कंडीशन के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि वी कंसिडर दैट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम हाउ द सिस्टम इज बिहेविंग. So in that case you can also use these equations or relationships for transient conditions also, ठीक है. And you have the load torque, that is denoted by T suffix L, and that is also specified in Newton per meter. So how these are related, ठीक है. ये आपके पास जो मोटर लोड सिस्टम है, इसकी फंडामेंटल टॉर्क इक्वेशन जो है, जो भी दोनों का डिफरेंस होगा, रिमेंबर दैट इन अ वेरी सिंपल सिस्टम दैट इज शोन ओवर हियर, if the load torque is in this direction and the speed of rotation of the motor load system is in the same direction, obviously the motor torque is overcoming the load torque, ठीक है. क्योंकि ओवरकमिंग का मतलब ये है उसे ड्राइव करके ले जा रहा है, अपने साथ ले जा रहा है, ठीक है. तो दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन यू विल ऑलवेज बी हैविंग टी टू बी ग्रेटर देन टी एल if the direction of t and omega are same. You'll be having certain conditions, अभी हम आगे चल के देखेंगे जिसमें directions भी change होंगे, दोनों के एक से भी नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है. So you have a simple torque equation, the difference in between these two, t minus tl is equal to the differential of j omega, ठीक है. तो अगर आप इसे j omega को ओपन अप करते हैं, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो व्हाट यू सी ओवर हियर इज दैट j इज अ कांस्टेंट वन, ठीक है. जे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बार सिस्टम बन गया आपके पास तो वो कांस्टेंट या फिक्स हो गया, तो दिस इज डिफरेंशियल गोज टू जीरो. सो दैट इज व्हाई दिस 2.1 यील्ड्स टू, और फिर आप टी एल को भी उस तरफ ले गए, इस तरफ ले आए आप राइट हैंड साइड पे, तो एंड ये टर्म आपके पास जीरो हो जाता है. सो टी इज इक्वल टू टी एल प्लस जे डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है. इसमें जो है तीन टर्म्स आए आपके पास. अगर आप इफ यू सी दिस इक्वेशन नाउ, यू हैव ए मोटर टॉर्क दैट इज इक्वल टू द लोड टॉर्क प्लस द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है. अगर आपको कोई भी आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, अगर आपको इस ये मोटर लोड सिस्टम है आपके पास एंड यू आर इनपुटिंग torque in this direction and the motor load system is moving in the same direction, ठीक है. So if you want to move it fast, आप चाहें कि और तेजी से पिकअप ले या क्या करें, तो what you actually do, you increase the torque. लोड टॉर्क तो उतना ही रहेगा, ठीक है. जैसे आपके पास कोई मोटरसाइकिल है, कार है, तो what you do, you just push the pedal of the accelerator or pull the accelerator in case of a bike. So what happens is that the engine produces more power and more power is equal to t omega, speed into torque, ठीक है. तो आपके पास स्पीड तो आपके पास शुरू में जीरो ही है, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सारा टॉर्क ही आता है आपके पास शुरू में, तो बिकॉज p हैज टू बी इक्वल टू t ओमेगा. सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज दैट यू हैव अ लार्जर टॉर्क अवेलेबल एट द मोटर. अगर आपके पास लार्जर टॉर्क अवेलेबल होगा मोटर का, तो जो चेंज इन स्पीड है दैट इज डी ओमेगा बाई डी टी इज लार्ज,
अगर ये डिफरेंस लार्ज है, यानी अगर ये डिफरेंस जो है टी और टी एल का कम है, तो ये आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं, अगर टी और टी एल का डिफरेंस कम है तो ये वाला कंपोनेंट भी जो है, जो एक्सेलरेटिंग कंपोनेंट है, ये कम होगा। ठीक है, बट अगर टी और टी एल का डिफरेंस ज़्यादा है तो व्हाट विल हैपन इज दैट दिस एक्सेलरेशन वुड बी फास्ट। ठीक है, सो इफ दिस इज फास्ट, सो here when you see this equation after rearranging, what you see is that the motor torque is equal to the load torque plus the moment of inertia multiplied by acceleration or the angular acceleration। ठीक है, तो ये कंपोनेंट उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा आपके पास ये टी होगा। टीएल तो कांस्टेंट है आपके पास, टी आप इनपुट दे रहे हैं मोटर से या किसी भी प्राइम मूवर से, अगर ये ज्यादा है, ये कांस्टेंट है, तो ये वाला टर्म जो है सेकंड टर्म इसका ज्यादा होगा। ज्यादा होगा का मतलब जे कांस्टेंट है, डी ओमेगा बाई डी टी ज्यादा होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, so what will happen in this case is that this first we define this term because this is a this has the units of a torque, so it is known as a dynamic torque। dynamic क्यों कहलाता है? Because this happens only when the system is in dynamism। डायनामिज्म का मतलब क्या है? जब कोई चेंज हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह हिल रहा है, इसका दैट मीन्स डी ओमेगा बाइम बाई डी टी, this will not happen at all the times, because if any motor load system picks up speed and reaches to a certain speed, तो what happens at that point of time कि स्पीड तो आपके पास है मगर उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। डी ओमेगा बाई डी टी जो है वो चेंज यानी आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने उसे एक्सलेट करना शुरू किया जीरो स्पीड से, ठीक है, आपके पास एक्सेलरेशन होता रहा और यू रीच्ड ए स्पीड ऑफ 60 और 80 से, वहाँ पे जाके आपने फुट पेडल जो है वो कांस्टेंट कर दिया। तो व्हाट विल हैपन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, देयर विल बी नो फर्दर एक्सेलरेशन, यानी यू हैव केप्ट द स्पीड टू बी 80 से बट देयर इज नो फर्दर एक्सेलरेशन। तो जे की वैल्यू तो मोटर लोड शाफ्ट का जो इनर्शिया वो तो उतना ही रहने वाला है, बट डी ओमेगा दैट मीन्स द चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है, चेंज इन स्पीड, नॉट स्पीड, द चेंज इन स्पीड इज गोइंग टू बी जीरो। सो दैट at that point of time you will be having this whole component to be equal to 0 and t to be equal to TL। ठीक है, यानी आपका जो डायनामिक टॉर्क कंपोनेंट है ये वाला, ये आपके पास 0 हो जाएगा और you will be having a steady state condition। So for a steady state condition you can simply say when the motor torque is equal to the load torque में हम losses भी अभी include कर देंगे, ठीक है, यूजफुल वर्क प्लस लॉसेस कर देंगे अभी हमेशा। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इज दैट व्हेन द मोटर टॉर्क इज इक्वल टू द लोड टॉर्क, इन दैट केस you are having a steady state condition, or you can also say is that when you don't have a dynamic torque or you don't have any acceleration, in that case you have a steady state condition। ठीक है, तो ये हमारी सारी बात हो जाती है इसमें। आई विल बी अपलोडिंग दिस, तो ये आप पढ़ लीजिएगा इसमें से। ठीक है, नाउ वन थिंग इज टू बी सीन ओवर हियर, हम उसी इक्वेशन पे वापस आते हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक शुरू करने से पहले नाउ व्हाट वी हैव इज दैट यहाँ हमने दो तीन चीजें देखी थी। पहला ये मोटर टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, स्पीड का भी डायरेक्शन मोटर के टॉर्क डायरेक्शन में, और लोड टॉर्क का डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द मोटर टॉर्क। So there may be a condition in which you can have the motor torque to be less than the load torque. In that case, the machine or the motor load system may not start, क्योंकि ये इतना फोर्स है ही नहीं इसमें कि ऐसे ड्राइव कर सके। तो अगर आपके पास गाड़ी है, आप उसे प्रॉपर वो नहीं दे रहे हैं, थ्रॉटल नहीं दे रहे हैं, तो इट वॉन्ट पिक अप। ठीक है, तो अगर उसमें इतनी रेस नहीं है तो इट वॉन्ट पिक अप। सो अगर नहीं होगा तो ओमेगा आपके पास 0 होगा। स्टिल यू कैन ऑल्सो हैव ए कंडीशन के यू आर से स्टैंडिंग डाउन हिल, यानी ढाल पे खड़े हुए हैं आप किसी पे, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द कार वुड बी और द बाइक वुड बी रोलिंग ऑन इटसेल्फ। ठीक है, तो जो आपके पास मोटर टॉर्क है, यानी मशीन जो आपके पास इंजन आपके पास जो काम कर रहा है,
ठीक है, तो वो आप अगर उसमें गियर डालेंगे तो फर्स्ट गियर पे चलेंगे तो वो भी उसी डायरेक्शन में ही चलेगा जिस डायरेक्शन में लोड टॉर्क ले जा रहा है उसे। लोड टॉर्क उसे ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से नहीं चले जा रहा है। बट अगर आप उसे फर्स्ट गियर पे चलाएंगे या अगर जिस गियर पे भी चलाएंगे, अगर फॉरवर्ड गियर पे चलाते हैं आप, तो व्हाट विल हैपन, द डायरेक्शन ऑफ मोटर टॉर्क or the machine torque or the direction of the rotation and the direction of the load torque all are in the same direction। ठीक है, तो ये कंडीशंस भी बन सकती हैं। कंडीशन ऐसी भी बन सकती है कि आपके पास डाउनहिल खड़े हैं आप, ठीक है, और यू पुट ए बैक गियर, तो आपके पास बैक गियर है तो पॉसिबिलिटी क्या है कि गाड़ी पीछे चलेगी। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से तो ये उल्टा रहा। ठीक है, और सारी चीज़ें नेगेटिव में आ गई, यानी अगर ये टीएल पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, या ये अगर क्लॉकवाइज है तो बाकी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, अगर हम गाड़ी डाउनहिल खड़ी है और ऊपर ले जाना चाह रहे हैं उसे। ठीक है, इट इज़ लाइक दैट। अगर आप डाउनहिल खड़े हैं और यू डोंट हैव अ वेरी पावरफुल इंजन, so the car may drag downwards। In that case, the direction of motion is the same as the direction of the load torque, यानी गाड़ी नीचे ही जा रही है, but still you are exerting a torque by the motor or the engine। तो मोटर का तो आपके पास, ये इंजन का जो डायरेक्शन है वो तो वही रहा, बट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन उल्टा आ रहा है बिकॉज द लोड टॉर्क इज मच लार्जर देन द मोटर टॉर्क एंड इट इज एबल टू ड्रैग दीज टाइप ऑफ द सिस्टम। So these types of loads which can actually drive the motor load system, the loads which can drive the motor load system are considered to be active loads। ठीक है, आपके पास कोई ट्रेन है, ट्रेन आप मूव कर रहे हैं उस पर, क्या नाम है, ट्रैक पे। ठीक है, तो इसी यूज से हुई कि द इंजन टॉर्क इज ग्रेटर देन द लोड टॉर्क एंड इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग। So at a point of time, say you have to stop that system. So what you do, you take out the prime mover, but still the system is running। ठीक है, लोड टॉर्क आपके पास रन कर रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ब्रेक इट। तो आइदर यू मैकेनिकली ब्रेक इट और एट टाइम्स यू कैन ऑल्सो इलेक्ट्रिकली ब्रेक इट। इलेक्ट्रिकली ब्रेक करने का मतलब क्या है कि दैट व्हाट इज ब्रेकिंग, ब्रेक मीन्स दैट यू हैव टू टेक आउट द एनर्जी फ्रॉम दैट मोटर लोड सिस्टम। अगर आप उसमें से एनर्जी निकाल लें, उसमें काइनेटिक एनर्जी है उस वक्त, अगर आप उसे निकाल लें किसी तरह तो सिस्टम रुक जाएगा। ठीक है, आपने उसमें से इंजन हटा लिया अपना, ठीक है, तो अगर इंजन हटा भी लिया तो भी इट विल गो ऑन फ्री व्हीलिंग एंड मूविंग फ्रीली। इफ यू हैव टू स्टॉप, यू विल हैव टू टेक आउट दैट energy or the kinetic energy from that motor load system। So the very basic and the crude thing is that you put mechanical brakes। ठीक है, डिस्क ब्रेक हैं आपके पास या वो जो नॉर्मल पैडेड ब्रेक होते हैं, ठीक है, तो वो आपने लगाए तो उससे क्या होता है कि वट एवर एनर्जी वॉज, काइनेटिक एनर्जी वॉज कंटेन्ड इन दैट मोटर लोड सिस्टम इज एक्चुअली वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट और फ्रिक्शन। ठीक है ना, एज फ्रिक्शन। ठीक है, तो वो आपके पास वेस्ट हो जाते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इज दैट यू रिवर्स the flow of power। That means whatever kinetic energy is stored in that motor load system or whatever type of energy, kinetic है, और अगर आप कोई लिफ्ट ले लें जो आपके पास जैसे नॉर्मल लिफ्ट होती है ये बिल्डिंग्स में और इसमें, तो इसमें ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है। ऊपर अगर आप चले गए तो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे जो नीचे खींचेगी, तो पोटेंशियल, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी होगी जो उसमें होगी मोटर लोड सिस्टम में। तो व्हाट यू कैन डू इफ यू हैव टू ब्रेक दैट थिंग, any type of energy, kinetic or potential, so you have to take out that energy। How to take it out? First, waste it by putting any means like this, जो frictional, उससे जो आप force से आप उसे frictional mechanism से आप उसे waste कर दीजिए in the form of heat। But at times that heat is very large, so what you do is that you go for electrical braking of the system। Electrical braking is that you make that energy stored in the motor load system back into electrical form। ठीक है, by putting the load torque as a prime mover and by using your motor as a generator now। ठीक है, तो you have a prime mover connected to a machine that is working as a generator। So what will happen, it will generate energy। वो energy लाएगा कहाँ से, उसी motor load system में से वापस लेकर उसमें दे देगा।
But the thing is that your system must be able to accept that energy. ठीक है, एंड यू हैव टू प्रोवाइड प्रोविजंस फॉर बाई डायरेक्शनल पावर और ये सारी चीज़ें, स्टोरेज ऑफ पावर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कंट्रोल ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिवर्सल एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, ठीक है, तो तो ये ये सारी प्राइम चीज़ें होती मूवर हैं। मेनली यूज किसके लिए किया जाता है सर? क्या मतलब सर वो चीज़? जनरेटर, सर ये प्राइम मूवर वर्ड मेनली यूज किसके लिए किया जाता है? जनरेटर के लिए? प्राइम मूवर जो भी चीज़ किसी दूसरे उसे ड्राइव कर रही है, चाहे मैकेनिकली, और मैकेनिकली ड्राइव करेगी क्योंकि लोड मैकेनिकल है। आप प्राइम मूवर इंटरनल कंबस्शन इंजन भी हो सकता है, प्राइम मूवर आपका एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन भी हो सकता है, जो आपके पास उसमें होता था, क्या कहते हैं, कोल फायर्ड में या न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जैसा भी है, ठीक है। और प्राइम मूवर आपका जो है वो इलेक्ट्रिकल मोटर भी हो सकता है। प्राइम, हम्म। ठीक है ना, तो कोई भी चीज़ प्राइम मूवर हो सकती है। जो है क्या, पहले प्राइम मूवर, प्राइम का मतलब होता है पहला, शुरू का, ठीक है, या इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, मतलब बहुत सारे डिक्टोरियल मीनिंग आते हैं प्राइम के, ठीक है। जैसे प्राइम टाइम होता है उसमें टीवी में, ठीक है, प्राइम का मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, या सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, या कुछ भी ऐसी चीज़ कह लो, ठीक है, या फिर शुरू का। तो इन सब चीज़ों में प्राइम वो होता है। जैसे उसमें तुम्हारा अमेजन प्राइम होता है, तो प्राइम का मतलब वो उन्हें प्रायोरिटी देते हैं पहले उन कस्टमर्स को जो अमेजन प्राइम पे हैं, ठीक है ना। तो मतलब जो सबसे चीज़ पहली हो, वो इंपॉर्टेंट हो, शुरुआत हो, इन सब चीज़ों को प्राइम कहते हैं। तो जो प्राइम मूवर कहोगे तुम किसी भी चीज़ में, तो इसका मतलब ये है जो सबसे पहला जंक्शन या पॉइंट है जहाँ से आपके पास चीज़ें ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास पावर प्लांट है, तो पावर प्लांट में प्राइम मूवर जो होगा वो होगा जो जनरेटर से पहले लगा होगा, जो उसे जनरेट कराने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो करेगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास ड्राइव है, तो ड्राइव ड्राइव में प्राइम मूवर आपका मोटर है, क्योंकि मोटर के बाद ही एक्चुअल लोड जो है वो रन करना या कुछ करना शुरू करता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डिफाइन अ प्राइम मूवर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अब नाउ द थिंग इज दैट यू कैन हैव इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग ऑल्सो। ब्रेकिंग का मतलब सीधा सीधा ये है, यू हैव टू टेक आउट दैट that energy contained in that motor load system somehow, either by frictional means, either by any of the means, आप उसे निकाल लें, क्योंकि वो एनर्जी जो है आप और उसके ऑब्वियसली अगर वो दो ही फॉर्म में हो सकती है, तो काइनेटिक होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी, दो में से एक ही चीज़ हो सकती है जो एनर्जी मोटर लोड से, बिकॉज द अरेंजमेंट्स व्हाट वी हैव कि लीनियर मोशन या तो सीधा होगा या फिर अप एंड डाउन होगा, ठीक है, और कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है ऐसा लीनियर मोशन का। अगर कोई स्लैंट है तो उसे भी आप अप टू डाउन ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, अगर डाउन हिल मूवमेंट है तो वो भी अप टू डाउन ही कंसिडर किया जाएगा। तो वो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होगी। इसमें भी जैसे आपके पास कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी है, बट जब वो लिफ्ट नीचे आनी शुरू हो गई तो उसने भी अपनी स्पीड पकड़ ली, तो उसमें दोनों एनर्जी आ गई, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी, क्योंकि एक सर्टन शुरू में तो पोटेंशियल थी जब तक रुकी हुई थी, जब वो चलनी शुरू हो गई लिफ्ट ऊपर से नीचे, तो व्हाट विल हैपन इज दैट it has got a speed, so it is a kinetic energy, and because it's still some points higher than the ground, so it has got a potential energy at different levels of points. तो होता क्या है कि एनर्जी कंटेंट उतना ही रहता है। अगर आपके पास एक लिफ्ट है दैट इज होल्डिंग अप से 4 फ्लोर्स, ठीक है, तो उसकी और रुकी हुई है, तो उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी है और वो उसकी हाइट की वजह से है, ठीक है। अब वो एक पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट है जो कि उसकी वेट और ये सब हाइट और इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, और जी पे डिपेंड करता है इन सब चीज़ों पे। तो व्हाट विल हैपन व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग डाउन किसी लिफ्ट में, तो व्हाट एक्चुअली हैपन्स, पहले उसकी स्पीड थी 0, ठीक है, तो उसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, बट व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग डाउन इट हैज़ अटेन्ड सम स्पीड। तो जब उसने स्पीड अटेन कर ली उस मास ने या उस ऑब्जेक्ट ने, तो उसकी एक काइनेटिक एनर्जी भी हो गई उस मास की, ठीक है। प्लस बिकॉज इट इज कमिंग डाउन, सो द पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग ऑन रिड्यूसिंग। तो जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होती जाती है नीचे आने में, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी यानी उसकी स्पीड जो है, मास तो उतना ही रहा एम वी स्क्वायर, वी बढ़ता जाता है इफ इट इज नॉट कंट्रोल। तो दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी।
सो द मेन थिंग इज दैट इफ यू हैव टू ब्रेक दैट सिस्टम, तो वो ऐसा नहीं है वो एनर्जी पोटेंशियल नीचे आने की वजह से खत्म हुई जा रही है, वो है मौजूद उसी सिस्टम में. द ओनली थिंग इज दैट इफ यू हैव टू स्टॉप इट, इन दैट केस यू हैव टू टेक दैट एनर्जी आउट. अगर आपके पास एक लीनियर मोशन है जो ज़मीन पे ही चल रहा है, तो उसमें से भी जब तक आप निकाल नहीं लेंगे इट विल गो ऑन मूविंग. अगर कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस है और आइडियल कंडीशंस हैं तो वो मूव करती ही चली जाएगी उसके बाद भी. So for that particular conditions, you have to take out that energy. Taking out that energy by any means is known as braking. B-R-A-K-I-N-G. Braking. And it comes from the word break. B-R-A-K-E, break. Not B-R-E-A-K. ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक का मतलब होता है रोकना. ठीक है. तो whenever you encounter this word break, तो you must write it as B-R-A-K-E, not B-R-E-A-K. ठीक है. तो ये चीज़ आप ब्रेकिंग की जहाँ पे बात करेंगे, तो वो चीज़ हमेशा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिसमें ड्राइव्स में ब्रेक्स लगाने की बात होगी. ठीक है. सो व्हेन यू हैव टू पुट अ ब्रेक इन दैट कंडीशन, ब्रेकिंग इज सिंपली टेकिंग आउट दैट एनर्जी फ्रॉम दैट सिस्टम सच दैट द सिस्टम स्टॉल्स, रुक जाता है. ठीक है. सो विल बी डिस्कसिंग सर्टेन कंडीशंस इन दिस. मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक जो है हम इस बारे में बात करेंगे कि हाउ वी हैव दीज स्पीड टॉर्क कन्वेंशंस ऑफ ए मल्टी क्वाड्रेंट ऑपरेशन, एंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस हैपनिंग. ठीक है. कौन कौन से होते हैं, कैसे क्लासिफाई होते हैं, और प्रैक्टिकली वो कंडीशंस कौन सी बनती हैं. यहाँ पे जो दिया हुआ है आमतौर से बुक्स में टी ओमेगा प्लेन पे है. आपने मशीन्स में जो पढ़ा होगा अभी तक, ओमेगा नी एक्स एक्सिस पे और टी वाई एक्सिस पे दिखा है जो मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई हैं. विल गो इनटू दिस कि ऐसा क्यों होता है, एंड विल आमतौर से आपको किताबों में एक ही कन्वेंशन मिलेगा. आई विल बी एक्सप्लेनिंग बोथ ऑफ देम, टी ओमेगा प्लेन पे भी और ओमेगा टी प्लेन पे भी. ठीक है. कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनाई जाती हैं, and what are the regions and how they classify your regions or quadrants in multi-quadrant drive operations. ठीक है. So I think it's all for today. If anybody wants to ask anything more, he or she can ask. चलो ठीक है. देन आई विल बी पुटिंग दिस ऑन द क्लासरूम. यू जस्ट गो थ्रू इट. पिछला वाला जो लेक्चर्स थे वो उसका भी मैं रेफरेंस मटेरियल आपका क्लासरूम पर अभी अपलोड कर दूंगा. सो यू गो थ्रू इट एंड just have a brush up of what the things are told to you. ठीक है. देखो, at times it is important to listen what is being told because this is a online mode. Obviously you are quite used to it now, but still there are a lot of things that are not written in the reference material or books or whatever it is, and that is told at that in covering that topic. So be attentive for not for because the core happens to be there for half an hour or 35-40 minutes of time. So be attentive for that much of time. And the second thing is that just सर go फॉरवर्ड through. और रिवर्स ब्रेकिंग और मोटरिंग में क्या डिफरेंस हो जाएगा? बताएंगे अगली बार, सब बताएंगे, सारी चीज़ें अच्छा फिर वो बताएंगे. डिस्कस. हाँ नहीं, अभी डिस्कस नहीं किया, अभी बताएंगे आगे. तो जो आपको बताया गया उसका जो जितना मटेरियल अपलोडेड है, आप इधर उधर से भी देख सकते हैं, तो आप देख के जो है एक बार उसका ब्रशअप ले लिया करिए उसी वक्त, बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट वाज कवर्ड. अगर आप उसे बाद में पढ़ाएंगे तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा उसे, एंड यू हैव टू अगेन गेट योर सेल्फ अंडरस्टूड बाई द स्क्रैच. आप शुरू से ही करें और बाद तक करें उसे पूरा. ठीक है ना. चलो ठीक है. चलो, थैंक यू.